Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay, so have you gone through the yesterday's lecture? Okay, so let's begin. Today we will be learning about the aerial photography and what is photogrammetry. That is a part of your first paper, unit 4, and then we will be doing the unit 3 in which हम लोग different satellites जो पूरे like ICNOS, Landsat उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Okay, if we are talking about the aerial photography, अब aerial photography होती क्या है? First of all, we learn about the term photography. It is the word which is derived from the Greek word meaning light. Phos meaning light and writing means graphen means light. Writing. So aerial photography is basically फोटोग्राफ क्या होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एज इट इज हम पेपर पे उसकी पिक्चर ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फोटोग्राफी. अब फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी एक प्रोडक्शन है किसी भी परमानेंट इमेज का by the means of action of light on sensitized surfaces. अब sensitized surfaces may be film हो सकता है, array हो सकता है inside a camera. और जो फाइनली हमको क्या देता है? राइज टू न्यू फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट. Now, what is aerial photography? Aerial photography means photography from the air. Yesterday we learned about the different platforms जिससे हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो हम लोग पिक्चर्स इमेजेस लेते हैं तो उसमें एक प्लेटफॉर्म जो एयर
प्लेटफॉर्म था, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। तो एरियल फोटोग्राफी बेसिकली हम लोग कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर ओनली। एंड इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट टू टेक द पिक्चर्स with the help of camera. Now I'm saying the word picture. Why picture? Because अब यहाँ पर हम लोग लिटरली कैमरा यूज करते हैं। जैसे आपके पास डीएसएलआर कैमरा आपने देखेंगे, बहुत सोफिस्टिकेटेड कैमराज आते हैं। सो वी आर यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ कैमराज जिसमें जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को एक्वायर करते हैं। अब it is a means of fixing time within the framework of space. Aerial photography was the first method of remote sensing and even used today in the era of satellite and electronic scanners. And still we are using remote sensing. Why? Because remote sensing gives us the exact picture of an area. दूसरा क्या है? एज द एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचे, बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा एरियल फोटोग्राफ्स का जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो ऑलवेज वेरी हाई होता है। सो अगर हमें कहीं भी किसी भी एरिया का बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन के पिक्चर चाहिए तो देन वी आर यूजिंग द एरियल फोटोग्राफ्स। Then the first known aerial photograph was taken in 1858 by French photographer and balloonist Gaspar Flix, and he is known as Nadar. So ये सबसे ओल्ड फोटोग्राफ है जो माना जाता है कि जो बैलून्स के थ्रू लिया गया था एरियल फोटोग्राफ। और जो अभी भी एरियल फोटोग्राफ एग्जिस्ट करता है दैट इज द फोटोग्राफ टेकन बाय जेम्स वेलेस ब्लैक्स। उसने बॉस्टन की इमेज ली थी हॉट एयर बैलून में बैठ के, एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ द ड्राई प्लेट प्रोसेस, एंड इट वाज नॉट लाइक अब एट दिस टाइम जो हमारा सबसे लेटेस्ट फोटोग्राफ, सबसे ओल्डेस्ट फोटोग्राफ है वो हमारे पास है जेम्स वेलेस ब्लैक्स का। ओके, so this was the photo, this is how he took the photograph. This is Gaspar Flix. Tonic Nader took the first aerial photograph from a captive balloon from an altitude of 1200 feet over Paris. Then this was the first photograph जो अभी भी exist करता है from a captive balloon. This is the history of aerial photographs, how we started taking the photographs from air, from a balloon. Then the kites are used in France. Arthur Batout took an aerial photograph from a kite in 1889. Then we have these are the pictures that are taken from using a kite. काइट में हमने उन लोगों ने एक कैमरा फिट करके उसको फ्लाई करा, एंड देन दे टुक द फोटोग्राफ साउथ ऑफ फ्रांस। देन पिजियंस वर यूज, कबूतरों को कबूतर यूज किया गया टू लाइक इन द प्रीवियस इन द लाइक एंशिएंट टाइम पिजियंस वर यूज टू deliver messages or pass messages from one place to another place. So they acquired the idea from there and they used pigeons, and उन्होंने neck में small cameras को mount किया, and then they fly that pigeon और उसके बाद they took the pictures. So this is how they install the cameras on the neck of the pigeons, और इनसे इन लोगों जो pictures लिए गए। Then the first successful aerial photograph from a rocket mounted camera was taken by a Swedish inventor Alfred Nobel in 1897. So अगर हम देखें तो like 1858 से 1897 तक within 40 years इतना डेवलपमेंट हो गया कि हमने बैलून से लेके रॉकेट तक हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया
किसके लिए? टेकिंग द फोटोग्राफ्स फ्रॉम द एयर. So this is how they took the photograph using a rocket. Then the first aerial photograph taken from an aeroplane was in 1909 by Wilbur Wright. So during the First World War, these photographs played a very important role. उन्होंने ये जो photographs लिए थे ये World War I में भी यूज हुए एंड उसके बाद उन लोगों ने शुरू कर दिया. लाइक पहले क्या होता था, स्केच बनाते थे, हाथ से बनाते थे, है ना. देन व्हेन दीज एरियल फोटोग्राफ्स वर टेकन फ्रॉम द एयरप्लेन, सो दे रिप्लेस द स्केच. जो पहले स्केच बनाते थे, हाथ से स्केच बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे, उन सबको किसने रिप्लेस कर दिया? दिस एरियल फोटोग्राफ ने. दिस इज हाउ दे टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम एयर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन. Okay, let's come to the type of aerial photograph. So there are basically three type of aerial photographs. First is the vertical photograph, then second is the low oblique photograph, and third is the high oblique photograph. Like in vertical photographs, so these are the vertical. The first image is showing the vertical photographs in which the lens of the camera makes a right angle at the surface or land surface or earth surface. Then optical camera low oblique means इस थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देते हैं कैमरे को विद लाइक 30 डिग्री एंड उससे ज्यादा 60 डिग्री तक अगर हम उसको टिल्ट कर देते हैं उसके कैमरे के एक्सेस से, सो दैट इज नोन एज द हाई ऑब्लिक. अच्छा, द कवरेज ऑफ द एरिया इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम कैमरा को टिल्ट करते जाते हैं वैसे वैसे कवरेज क्या बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एरिया वाइज कवरेज बढ़ता जाता है. So this is the according to camera axis. कैमरा का जो एक्सिस है उसके बेसिस पे हमने तीन तरह के हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, वर्टिकल, लो ऑब्लिक एंड हाई ऑब्लिक. देन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, अगर हम स्केल के बेसिस पे देखें, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल का मतलब है कि व्हेन द स्केल इज बिटवीन 5000 टू 20,000, तो उसको बोलेंगे हम लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल एरियल फोटोग्राफ्स. मीडियम स्केल इज लाइक 20,000 to 50,000 and small scale means smaller than 50,000. If the scale is smaller than 50,000, then it will be known as small scale aerial photographs. देन अकॉर्डिंग टू फिल्म, किस टाइप की हम लोगों ने फिल्म उसमें यूज करी है, तो वन इज द ब्लैक एंड व्हाइट पैनक्रोमेटिक इन विच द इमेज इज इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, is in black and white. Then second one is black and white infrared, in which the infrared is used. Then color photography, the normal photographs that we take, अभी जो हम लोग अपने कैमरे से, मोबाइल से जो पिक्चर्स लेते हैं, that is the color, normal color aerial photographs. Then we have color infrared or false color aerial photographs. These photographs, the false color aerial photographs are basically used in the agriculture. Now, what are the characteristics of aerial photographs? First of all, एरियल फोटोग्राफ हमको साइनॉप्टिक व्यू पॉइंट देते हैं. देन
इट हैज द टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी, दैट्स मीन जब भी हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, दैट इज द परमानेंट रिकॉर्ड, हमेशा वो हमारे पास रहेगा कि एट दैट टाइम, लाइक इफ आई हैव टेकन द पिक्चर्स बिफोर फ्लड, तो वो पर्टिकुलरली जिस ईयर का हमने लिया, उस ईयर में जो फ्लड आया था उससे पहले किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की में क्या कंडीशंस थी वो हमको शो करेगा. Then aerial photography has the capability to stop action. Like yesterday we discussed कि जब हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं तो we don't have so much of control on that satellites. बट जब हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं, एरियल एयरप्लेन से हम पिक्चर्स लेते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो वी हैव द फुल कंट्रोल ओवर द एयरप्लेन कि हमें क्या फ्लाइट लाइन चूज करनी है, कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है, कब हमको स्टॉप करना है, कौन सा एरिया हमको कवर नहीं करना है, कहाँ के हमें पिक्चर्स लेने हैं, कहाँ पे हमें वो पिक्चर्स नहीं लेने. सो दिस इज ऑल like full, we have the full control in our hands. Then spectral or spatial resolution. Spectral resolution, we can increase or decrease the spectral resolution. And spatial resolution की जब हम बात करेंगे कि कितना छोटे से छोटा एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एरियल फोटोग्राफ्स हमारे बहुत ही लार्ज स्केल पे एरियल फोटोग्राफी होती है, तो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दीज एरियल फोटोग्राफ्स. अच्छा, इन द प्रीवियस टाइम क्या होता था कि हमारे पास सिंपल कैमरा होते थे, लाइक द वन दैट वी यूजेस टू क्लिक आवर पिक्चर्स. बट नाउ अ डेज देयर आर मेनी पिक्चर्स जो इंफ्रारेड पे काम करते हैं. दे take the pictures in the infrared range of electromagnetic radiation. That's mean vegetation के लिए भी identification of vegetation, या हमको दो plants species में पता करना है, तो we can use them. Then they are sensitive to objects outside the spatial resolving power of human eye. There are many things जो हम अपने naked eye से नहीं देख सकते हैं, but we can use aerial photography to know the things or objects that are beyond our vision. Then they are available all the time. हम कभी जब हम चाहें हम at that time कर सकते हैं. It is just कि वेदर क्लियर होना चाहिए कि हमारा एयरप्लेन जो है वो फ्लाइट कर पाए. ओके, that is the only restriction कि कभी बारिश हो रही है तो we will be not able to take the pictures, or just during the rainfall we will be not able to take the pictures, otherwise we can take the pictures. And one thing more, like if we are using the common cameras, then there is like if the sun is not there, or in the evening time, we will be not able to do the aerial photography. Then economy की बात करें तो these aerial photographs are cheaper. They are cheaper in the way that when we are taking the pictures, they are with us always, and we can use it not for only one project, but we can use it for many of the projects. And one more thing, the very important aspect of aerial photography is that we can view the 3D. We can make the 3D, or we can calculate the height of objects. Aerial photography में if aerial photographs are 70% overlapped, like we have the photographs, so if these photographs are 70% overlapped laterally and vertically, so how the pictures are taken, like so the photographs are always taken by overlapping them. अब हमारे पास जो ओवरलैप फोटोग्राफ्स होते हैं 60% और मोर, अगर हमारे पास जो फोटोग्राफ्स हैं वो ओवरलैप्ड हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं, देन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टीरियोस्कोप, उससे हम 3D व्यू कर सकते हैं। एंड देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पैरेलैक्स, उसके पैरेलैक्स को यूज करते हुए हम उसका हाइट को मेजर कर सकते हैं। ओके, देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक जो हमको एरियल फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक वन इज द फ्लाइट लाइन। फ्लाइट लाइन मतलब जिस भी डायरेक्शन में हमारा प्लेन मूव कर रहा है, लाइक our airplane is moving in that direction, so this will be known as the flight line. This will be known as the flight line. And aerial photography is always in this form. The airplane moves from this direction, then this direction, and that is how the aerial photographs are taken. This is known as the flight path. This is known as the flight line, and this the movement of plane in this direction is known as the flight path. Then there are another, like what is a flight line? It is the first step in the production of digital orthophotograph, and terrain model is capturing aerial photograph of the land surface. So to acquire the image, an aeroplane travels over a study area in a straight line. This straight line is known as the flight line of aerial photography. So to acquire the image, an aeroplane travels over a study area in a straight flight line, and photographs are taken such that every ground point appears in at least two successive photographs. That is the overlap of one photograph over the other photograph. So the photographs are overlapped both in this direction also and in this direction also. The photographs are always overlapped. In this direction more than 60%, and in this direction more than 30% photographs are overlapped. So this is the flight line. Then flight path. Flight path means द मूवमेंट ऑफ, अब लाइक अगर हमारा एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है तो वापस जाने में और फिर ऐसे मूव करने में बहुत फ्यूल वेस्ट होगा, इसलिए हमारा प्लेन हमेशा ऐसे मूव करेगा, देन वो ऐसे मूव करेगा एंड दिस डायरेक्शन. सो दिस इज नोन एज द फ्लाइट पाथ. Acha, tomorrow I will show you some aerial photographs, and on aerial photographs there are some specific terms that I'm going to discuss tomorrow, because just now I'm not having the aerial photographs in my laptop. So we will be discussing the fiducial marks. I'll explain you a small one. Like if this is the aerial photographs. तो एरियल फोटोग्राफ में इस तरीके के 4 पॉइंट बने होते हैं, उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है. सो दीज आर नोन एज द फिड्यूशियल marks or fiducial points. Sometimes a photograph may have 4 or sometimes a photograph may have 8 fiducial marks. अब fiducial marks का काम क्या होता है? ये fiducial marks को जब हम join कर देते हैं like this, तो यहां पर एक हमको सेंट्रल पॉइंट मिल जाता है, एंड दैट सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल पॉइंट. जो हमारा सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ होगा या प्रिंसिपल पॉइंट होगा, सो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल पॉइंट.
Then there are other things also like isocenter, crab is like the during the survey जब हमारे पास कोई चीज एडजस्ट हम नहीं कर पाते हैं किसी भी पोजीशन को, तो जो उसमें टिल्टिंग होती है, लाइक हमारा एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में हमारे एग्जैक्ट photographs होने चाहिए, and sometimes due to weather conditions or due to any condition when there the camera is tilted, so that is known as the crab. ये जो थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं ये फोटोग्राफ्स, जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट इफ दे टिल्टेड इन दैट डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, सो दे आर नोन एज द crab. देन द फ्लाइट एल्टीट्यूड. अब फ्लाइट एल्टीट्यूड क्या होता है? लाइक आवर प्लेन इज flying in this direction and there is the ground is here, so flight altitude means जिस हाइट पे हमारा एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है from the ground is known as the flying altitude. You can write it down. This is known as the flying altitude. So this is flying altitude. Then we let's move to photogrammetry. And what is photogrammetry? Photogrammetry is a science of taking the aerial photographs and making measurements from these photographs. अब एरियल फोटोग्राफ जो हमने लिए हैं, उन एरियल फोटोग्राफ से जब हम मेजरमेंट करते हैं, लाइक हम स्केल निकाल रहे हैं, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम हाइट मेजर कर रहे हैं, तो जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं यूजिंग द एरियल फोटोग्राफ्स इज नोन एज फोटोग्रामेट्री. So aerial photogrammetry as a science is among the earliest technique of remote sensing. And the word photogrammetry is a combination of three Greek words. One is photos, that means light, gramma means to draw, and metron means to measure. अब अगर इन तीनों वर्ड्स को हम अलग अलग देखें, लाइट, ड्रॉ और मेजर, मीन्स जो फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं उनको हम ड्रॉ करके मेजर करेंगे. सो दैट इज द फोटोग्रामेट्री, means measuring graphically by means of light, and by means of light means by taking the photographs. So the fundamental goal of photogrammetry is to rigorously establish the geometric relationship between an object and an image and derive information about the object from the image. For the layman, photogrammetry क्या है? Is the technological ability of determining the measurement of any object by means of photography. जो भी हमने फोटोग्राफ्स लिए हैं उनसे जो भी हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज द फोटोग्रामेट्री. So there are many definitions, the science and art of determining the size and shape of object as a consequence of analyzing images recorded on film or electronic media. So different people gave different definitions, बट हमको क्या याद रखना है? हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी हम एरियल फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, जो भी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, उनको यूज करते हुए हम जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो हिल हैं, कहीं पे माउंटेन पीक्स हैं, उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं या उनको हम मेजर करके बता रहे हैं कि विच पीक इज हायर. So this type of relationship, if we are able to make and we are driving to some conclusion, so this will be known as photogrammetry. Then we have the digital photogrammetry, like in digital photogrammetry, like the photographs are taken now onward. Now अभी क्या होता है with the technological
जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब वी हैव द डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी पिक्चर डिजिटल कैमरा से लेते हैं तो दैट पिक्चर विल बी नोन एज द डिजिटल इमेज। अब हमारे पास अगर डिजिटल इमेज है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द डिजिटल, वी कैन डू द डिजिटल फोटोग्रामेट्री। डिजिटल फोटोग्रामेट्री एनालॉग फोटोग्रामेट्री से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इट इज जस्ट कि अब हम लोग पहले हमारे पास जब फोटोग्राफ्स आते थे तो हम उसको क्या करते थे, हम उसका प्रिंट आउट निकलवाते थे एंड देन वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टीरियोस्कोप। उसको यूज करते हुए हम उसके हाइट्स को मेजर करते थे, या मैन्युअली डिस्टेंसेस आर मेजर। बट अब क्या है, नाउ वी हैव द डिजिटल इमेजेस। तो डिजिटल इमेजेस को हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज करके हम किसी भी प्लेस की हाइट्स निकाल सकते हैं और डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। So it is just made possible with the help of digital photographs only. So the unique advantage of digital photography in terms of precision and accuracy offers opportunities for automation of DEM. DEM is the digital elevation model and DTM is the digital terrain model. And integration of images acquired on a multi-platform and multi-sensor basis. अगर हम बात करें तो डिजिटल फोटोग्रामेट्री ने अब क्या किया है, इट इज अ टेक्निक जो हमको 3D या 3D ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काम आती है रियल वर्ल्ड की, फ्रॉम स्टीरियोस्कोपिक इमेज। अब स्टीरियोस्कोपिक इमेज हम उन इमेजेस को बोलेंगे जो हमारी 60% से ज्यादा ओवरलैप इमेजेस होती हैं, उनसे हम स्टीरियोस्कोपिक उनको हम स्टीरियोस्कोपिक इमेज कहते हैं, और उनसे हम 3 डायमेंशनल व्यू ले सकते हैं। मतलब उनसे हमको क्या मिलता है, वी गेट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स, hills, mountains, whatever is elevated objects on the surface, we can get the information of height. Means there are 3 dimensions: length, breadth, and height. So using the aerial photographs, we can get all 3. हम लेंथ भी पता कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ब्रेथ भी पता कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो नो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. Now, there are many techniques of photogrammetry. First is depending on the lens setting. तो लेंस की सेटिंग से हमें 2 तरीके की फोटोग्रामेट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं, फार रेंज फोटोग्रामेट्री एंड क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्वेइंग we can divide it into 2. One is the terrestrial or ground photogrammetry and दूसरी क्या है, aerial photogrammetry. अगर हम बात करें क्लोज रेंज से, तो एज द नेम सजेस्ट, क्लोज रेंज डिजिटल फोटोग्रामेट्री क्या है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ कैमरा माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड, स्टैंड और व्हीकल और हैंड हेल्ड डिवाइस, है ना. अब इसमें एक हम लिडार टेक्नोलॉजी को भी यूज कर, लिडार टेक्नोलॉजी भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि लिडार में क्या होता है, लिडार में जो कैमरा होते हैं उनको हम किसी भी व्हीकल पे माउंट कर देते हैं एंड वी टुक द पिक्चर्स. सो इन द सेम वे अगर हम लोग क्लोज रेंज फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं तो द कैमरा कैन बी माउंटेड ऑन अ व्हीकल, ऑन अ ट्राइपॉड, और किसी भी या हैंड हेल्ड डिवाइस से भी हम पिक्चर्स ले सकते हैं. Then we have the aerial or the terrestrial or ground photogrammetry. इसमें क्या करते हैं, it is just the same as the close range photography is, and this is used for basically the measurement purpose. So this is the example of take
taking close range digital photogrammetry. So there are some more points on terrestrial photography. Photogrammetry. Maps are prepared from photographs taken from some fixed position on or near the ground with camera axis horizontal, like here. See, the camera is mounted on the tripod, and we are taking the pictures using it. This. Then स्मॉल स्केल मैपिंग के लिए ये सही होता है. हम लोग ओपन हिल में अगर हम मैपिंग करना चाह रहे हैं, देन वी कैन यूज द टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी. देन मोशन पिक्चर फोटोग्राफी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. और ये क्या करता है, हमें ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स अगर कलेक्ट करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एरिया के, सो वी कैन यूज इट. Then we have aerial photography. Aerial photography, like the aerial photograph, हम लोग these photographs are taken using the aerial aircrafts. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे we use the aircrafts flying over the area with camera axis vertical. ठीक है. अब इसमें वर्टिकल भी हो सकता है, लाइक वर्टिकल भी हो सकता है, लो ऑब्लिक भी हो सकता है, हाई ऑब्लिक भी हो सकता है. वर्टिकल होगा तो द कैमरा एक्सेस विल बी स्ट्रेट. लो ऑब्लिक में अ स्मॉल टिल्ट इज देयर, एंड हाई ऑब्लिक में लाइक द कैमरा एक्सेस इज टिल्टेड टू 60 डिग्री. अब ये हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है, लाइक किसी भी कंट्री के प्रिलिमिनरी सर्वे के लिए यूज कर सकते हैं हम. रोड के, रेलवे के, रिवर्स के सर्वे के लिए एरियल फोटोग्रामेट्री यूज करी जा सकती है. कोई नई स्कीम बन रही है, या जैसे लाइक हमारा ये नया एक्सप्रेसवे बना था, ताज एक्सप्रेसवे, तो सो द एरियल फोटोग्राफी हैज बीन डन ऑफ दैट एरिया टू नो द कंडीशन के कहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हमारे आ रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स हटाए जाएंगे, कौन कौन से what are the how many number of trees can be have to be removed from that area. That then town and country planning के लिए हम यूज करते हैं. एक्विजिशन ऑफ लैंड, हमें कहीं पे अगर इंडस्ट्री लगानी है तो हम वहां का एक एरियल सर्वे करते हैं, और वहां पे उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि आसपास क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स जो हमारे इफेक्ट होंगे अगर हम वहां पे इंडस्ट्री लगाते हैं. देन माइनिंग में यूज होता है, जियोलॉजी में यूज होता है, सॉइल एग्रीकल्चरल स्टडीज में होता है, मिलिट्री के न्यू इंस्टॉलेशन हैं, कैंपेन हैं, कोई ऐसे जोन्स हैं जहां पे नहीं जाना है, तो उन सब एरियाज की मॉनिटरिंग के लिए वी यूज द एरियल फोटोग्राफी. So this is how the aerial photography has been done. So this is the aerial aircraft. The camera is mounted over here. A digital camera can be mounted, और लेजर स्कैनर भी हम यूज कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी कैमरा हम यूज कर सकते हैं. एंड द कैमरे का जो भी एक्सेस होगा, जितना भी वो देख पाएगा, वो वहां की पिक्चर्स लेगा. अब दिस विल बी योर फ्लाइट डायरेक्शन, फ्लाइट लाइन. कैमरा ये आपका इस तरीके से अगर फ्लाई कर रहा है तो दिस विल बी योर फ्लाइट लाइन. अब लाइक ग्राउंड पे ये ऐसे मूव कर रहा है, मान लिया हमको इतना बड़े एरिया के पिक्चर्स लेने हैं, तो ग्राउंड पे ये इस तरीके से एक बार मूव करा, अब वापस ये इस तरीके से जाएगा, एंड दिस विल बी द फ्लाइट पाथ. So aerial photogrammetry में क्या है, maps are produced from air photographs. That's mean the photographs that are taken from the air.
Then generation of digital terrain models and ortho photographs, ये हम कैसे मिलते हैं हमको? Like when we are taking the photographs, so the photographs are always overlapped 60% or more, and in that way what we can do, we can create the three dimensional of that area. हमको एक थ्री डायमेंशन भी मिल जाता है, दैट इज द हाइट. एंड जो हाइट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक दिस इज द ग्राउंड. अब ग्राउंड पे दिस इज कैनॉट बी ऑलवेज फ्लैट, तो हो नहीं सकता. सम बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकता है. सो ये जो सरफेस हमारी बनेगी कि किस चीज की कितनी हाइट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, सो दिस विल बी आर डिजिटल एलिवेशन मॉडल. अब डिजिटल टेरेन मॉडल में क्या होगा? डिजिटल टेरेन मॉडल, हाउ द डिजिटल टेरेन मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजिटल सरफेस मॉडल. अब डिजिटल टेरेन मॉडल में क्या होगा? अगर कहीं पे ट्री लगा हुआ है तो वो इस ट्री को रिमूव करके इसके नीचे की आपको हाइट बताएगा. ओनली नेचुरल फीचर्स आर टेकन इनटू अकाउंट. जो हमारे हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, जितने भी हमारे जियोमॉर्फिक फीचर्स हैं, उनसे जो हाइट प्रोड्यूस हो रही है हम सिर्फ वो लेंगे. सरफेस मॉडल में क्या होगा? सरफेस मॉडल में लाइक वन ट्री इज देयर, तो जो हमारा टेरेन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इसकी हाइट को लेते हुए. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल टेरेन मॉडल एंड डिजिटल सरफेस मॉडल. We will be going to study it in details in further lectures. See, this is the basic difference between digital surface model and digital terrain model. अब surface है रेड वाला लाइन. मान लीजिए यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, यहाँ पे कोई ट्री है, तो अगर हम सरफेस बनाएंगे तो सरफेस का मतलब ये है कि वो जो ट्री का ऊपर का पार्ट है वो उसके ऊपर से हाइट दिखाएगा, ये हाइट दिखाएगा, दिस विल बी योर हाइट. ये हाइट दिखाएगा यहाँ पे. और अगर हम टेरेन मॉडल की बात करें तो जो भी इसके नीचे की ये अंडरलाइन वाला पार्ट है लाइट ब्लू कलर का, सो दिस विल बी योर डिजिटल टेरेन मॉडल. देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटोग्रामेट्री? हम इसको टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने के लिए या टोपो शीट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्लान्स बनाने के लिए, लैंड यूज मैप्स बनाने के लिए, या हाइड्रोग्राफिक मैप्स. हाइड्रोग्राफिक मैप्स आर the maps in which we use the like ground water, surface water है, इनसे रिलेटेड हमें कोई स्टडी करनी है, मैप्स बनाने हैं, तो वी यूज द एरियल फोटोग्राफी. देन टेरेस्ट्रियल और साइंटिफिक स्टडी में यूज होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हाइड्रोग्राफिक मैप्स की, तो हाइड्रोग्राफिक मीन्स हमें रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. रिवर इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम एन एलिवेटेड एरिया टू द लोअर एरियाज. सो जब तक हमें हाइट नहीं पता चलेगी, वी विल बी नॉट एबल टू नो द डायरेक्शन और द फ्लो ऑफ द रिवर. सो हमें वहां पे हाइट चाहिए, तो देन वी आर यूजिंग द फोटोग्रामेट्री. देन स्टीरियोस्कोपिक एप्लीकेशंस हैं, हमें मेजरमेंट्स बनाने हैं, कैडेस्ट्रल मैप्स बनाने हैं, सो या मेडिकल एप्लीकेशन है. तो देयर इज अ वास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फोटोग्रामेट्री. Okay, so this is all about the aerial photography. If anyone want to ask anything from this aerial photography, they can ask. Otherwise, we will be starting the other lecture on different types of satellites that are there in your course.
किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, आई एम टेकिंग जस्ट 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद में शुरू करती हूँ।
Okay, let's start with this Landsat images. So Landsat means land observation satellites that are Landsat is an American satellite. So this is the Landsat satellite of some area, and they are the multispectral images. अब Landsat program है क्या? Landsat program is a series of Earth observing satellite missions which are jointly managed by NASA and the US Geological Survey. So we all have learned, we all must be knowing about the NASA. सबको नासा के बारे में पता है कि नासा क्या होता है? नासा क्या है? NASA is the National Aeronautics and Space Administration. So ये जो लैंडसेट का हमारा पूरा प्रोग्राम है, दिस इज अ सीरीज. ये लाइक इट वाज लॉन्च इन 1972 and from then onwards it is collaborated with US Geological Survey, and still the Landsat data is available of all over the world to all the people. या इसकी एक साइट है USGS की साइट पे, अगर आप जाएंगे तो आप ये सारा डेटा सैटेलाइट का डेटा ईयर वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अब ये है कि लैंडसेट जो प्रोग्राम है इसमें क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिशंस हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग till still they are launching new satellites like अभी Landsat 8 था. नाउ करेंटली अभी एट दिस टाइम Landsat 7 एंड Landsat 8 जो सैटेलाइट के मिशन हैं, दे आर इन वर्किंग कंडीशन. आपको Landsat 7 के, Landsat 8 के स्टिल डेटा मिल जाएंगे. एंड नाउ दे हैव लॉन्च द Landsat 9 मीन्स इन 2021 के लास्ट तक इनका Landsat 9 का भी डेटा आपको मिलना शुरू हो जाना था. So Landsat satellites have the optimal ground resolution and spectral bands to efficiently track land use and to document land change due to climate change, urbanization, drought, wildfire, biomass changes. So इसमें एक स्पेशल फीचर क्या है, लैंडसेट के साथ हमें एक और एक इनमें बैंड है, बैंड 10. बैंड 10 से हमें कहीं का भी लैंड का सरफेस टेम्परेचर डेटा भी मिल जाता है. इफ यू गूगल, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको मिलता है LST. LST इज अ वेरी न्यू थिंग जिसमें लैंड सरफेस टेम्परेचर हम किसी भी जगह का मेजर कर सकते हैं. एक और नया कॉन्सेप्ट आया होगा, यू मस्ट हैव हेard अबाउट द हीट आइलैंड. हीट आइलैंड की जो कॉन्सेप्ट आया है, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमको लैंडसेट डेटा प्रोवाइड कर रहा है किसका, टेम्परेचर का. तो हम हीट आइलैंड्स आर बेसिकली द अर्बन एरियाज. जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर क्योंकि ड्यू टू व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वहां पर क्या होता है, वहां पर हीट आसपास के एरिया से वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है. और अगर हम ये सैटेलाइट इमेजेस देखें बैंड 10 ऑफ लैंडसेट तो हमको पता चलेगा कि आसपास के रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज का टेम्परेचर काफी हद तक ज्यादा होता है. एंड दीज urban areas are known as the heat islands. So Landsat is an important satellite, and that is why we are studying this.
सो द प्रीवियसली जब 1972 में ये लॉन्च हुआ था, तो ये अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के नाम से लॉन्च हुआ था. देन दिस प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज लैंडसेट, मींस लैंड सैटेलाइट मिशन के नाम से इसको रीलॉन्च किया गया 1975 में. अब if we are going to the history, so in 1965 विलियम टी पिकोरा द उस टाइम के जो डायरेक्टर थे यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के, उन्हीं ने एक आइडिया प्रपोज किया कि हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं एंड उन सैटेलाइट्स से हमको जो डेटा मिलेगा वो हम अर्थ के रिसोर्स मैपिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं. फ्रॉम दैट टाइम they worked on the same idea and they launched different satellites. And उन satellites को launch करने के बाद they started getting the data from 6 January 23 जुलाई 1972 से हमको लैंडसेट 1 से डेटा मिलना शुरू हुआ था. Then what are the characteristics of Landsat 1? I will be sending you the PDF of the different satellites कि जो सैटेलाइट्स हैं उनका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या है, स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या है. आई विल बी सेंडिंग यू दैट. अब नाउ जितना भी हम बात करें तो जो भी सैटेलाइट्स लैंडसेट के सीरीज में लॉन्च हुई हैं वो 5 से 7 साल तक वर्किंग पोजीशन में रही हैं. शुरू की लैंडसेट 1 5 साल से ऊपर वर्किंग पोजीशन में रही, कि मतलब हमने 5 साल तक उससे डेटा लिया. देन लैंडसेट 2 का हमारा 7 इयर्स में तक डेटा लिया गया. लैंडसेट 3 से 5 इयर्स और कुछ दिन तक डेटा लिया गया. जो सबसे ज्यादा डेटा जो लिया गया है अब तक की सारी सैटेलाइट से वो है लैंडसेट 5 से अराउंड 29 इयर्स तक डेटा लिया गया है. लाइक 1984 में जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उस दिन से लेके जून 2013 तक लैंडसेट से डेटा लिया गया है. लैंडसेट 5 से लैंडसेट 6 was launched but it was failed. जो मैं कल बात कर रही थी कि जब हम स्पेस में कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर हमें फुल कंट्रोल नहीं रहता है. एंड दैट द मिशन ऑफ लैंडसेट 6 सैटेलाइट वाज फेल्ड क्योंकि वो ऑर्बिट तक it was failed to reach the orbit. So then we launched the satellite like Landsat 7 was launched in 1999 and Landsat 7 as I told you earlier अभी भी working condition में है. Landsat 8 was launched in 2013 जो still active है. still हम Landsat 8 से डेटा ले रहे हैं. and Landsat 9 was launched on 27 September 2021 this year. और अभी हम इससे 3 महीने से डेटा लेना शुरू कर दिया है. एंड स्टिल वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम Landsat 9. अगर हम बात करें स्पेशियल और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या है तो लैंडसेट 1 में हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स लगे हुए थे जिसमें हमारे पास 4 बैंड थे जिसमें बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6 और बैंड 7 था. बैंड 4 ग्रीन बैंड, रेड बैंड, नियर इंफ्रारेड बैंड और नियर इंफ्रारेड बैंड 7. सो हमारे पास 4 बैंड थे. इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल था और इसका जो स्पेशियल रेजोल्यूशन था, कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होता है. स्पेशियल रेजोल्यूशन मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है उस ऑब्जेक्ट का दिस पिक्सल विल बी नोन एज द स्पेशियल रेजोल्यूशन. अब इस स्पेशियल रेजोल्यूशन का ये लेंथ और ब्रेथ कितनी है 60 मीटर. सो जो हमारी लैंडसेट फर्स्ट सीरीज थी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स के साथ उसमें 4 बैंड थे
जिसकी वेवलेंथ थी 0.5 से 0.6, बैंड 4 की दैट इज द ग्रीन बैंड, फिर रेड बैंड की 0.6 से 0.7, बैंड 6 की 0.7 से 0.8 और बैंड 7 की 0.8 से 1.1 और स्पेशल रेजोल्यूशन कितना था 60 मीटर्स। देन हमारे पास लैंडसेट 4 एंड लैंडसेट 1 से लेके लैंडसेट 5 तक जितनी भी सीरीज ऑफ लैंडसेट थे सबका सेम रेजोल्यूशन था। फिर लैंडसेट 4 और लैंडसेट 5 में हम क्या ऐड किया गया था, एक थीमेटिक मैपर ऐड किया गया था और 2 बैंड्स और ऐड किए गए थे। वन इज द थर्मल बैंड जो मैंने अभी आपको बताया एलएसटी वाला, और दूसरा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड। दीज 2 बैंड्स आर एडेड जिनसे हमको इंफॉर्मेशन मिल रही थी टेम्परेचर के बारे में। देन लैंडसेट 7 में इनहैंस जो थीमेटिक मैपर्स थे उनके साथ ही इनहैंस थीमेटिक मैपर्स वर एडेड इन लैंडसेट 7। और जो अभी लैंडसेट 8 है, लैंडसेट 8 में एक और टेक्नोलॉजी ऐड करी गई दैट इज नोन एज द ऑपरेशनल लैंड इमेजर एंड थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स। बैंड 10 से एंड बैंड 11 से हमको जो डेटा मिलता है वो हमें मिलता है किसी भी सरफेस के टेम्परेचर के बारे में। नाउ लेट्स सी द इमेजेस के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो कैसे मिलती हैं, कौन कौन से बैंड्स हैं। So this is how the satellite image looks like. This is the false color composite image made from Landsat image. Then this is the true color satellite image of the Earth, in which you may it is showing the river, its delta. Now I told you कि इसमें एक टेम्परेचर पता करने वाले भी सेंसर्स लगे हुए हैं। थर्मल सेंसर्स हैं। थर्मल सेंसर्स क्या करते हैं, थर्मल बैंड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को पता कर सकते हैं एंड दैट हेल्प्स इन determining the land surface temperature. So this is the whole electromagnetic spectrum जो रेडियो वेव से हमारे शॉर्टेस्ट गामा रे वेव तक है। सो दिस इज द रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज। हम लैंडसेट के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें हमारे पास विजिबल बैंड्स हैं, विजिबल इमेजेस के बैंड्स हैं, विजिबल वेवलेंथ के बैंड्स हैं, इंफ्रारेड वेवलेंथ के बैंड हैं एंड थर्मल वेवलेंथ्स के बैंड्स हैं। So now all the colors that we see with our naked eyes, अगर हम अपने नेकेड आई से जितने भी कलर्स देख सकते हैं उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो डिफरेंट है। लाइक रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर वेवलेंथ की बात करें एंड ब्लू हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ब्लू की अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स में इस ब्लू वेवलेंथ के जो बैंड्स हैं उनको हटा दिया गया है। बेसिकली क्यों, क्योंकि दिस ब्लू band wavelength is basically used for the oceanic studies, and when we are talking about the land surface monitoring or land resource monitoring, natural resource monitoring, so हमको इतनी ब्लू की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बेसिकली ग्रीन, red, infrared, near infrared, short wave infrared, so these are the bands which are there in a particular satellite. So yesterday we were talking कि our eyes detect the entire visible range of those wavelengths and our brain process the information into different separates and into separate colors. अब सारे कलर्स को हम सेपरेट तो कर देते हैं पर किस कलर के हम शेड्स पहचान सकते हैं, क्योंकि रेड की
वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम रेड कलर के ज्यादा से ज्यादा कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. So this is the Landsat instrument, and they are designed to detect visible and infrared wavelength and also the thermal one. So this is the operational land imager, and that was this is the picture when it was under construction. So this is how the like yesterday I was talking about कि जो भी 100% सोलर से रेडिएशन अर्थ पे आता है वो 100% नहीं आ पाता है. 29% इज रिफ्लेक्टेड, 23% इज अब्सॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, ओनली 48% रीचेस द सरफेस. अब अगर हमें किसी भी सैटेलाइट की वर्किंग को पता करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ तक आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है. अब ये 48% जो आता है ये 100% रिफ्लेक्ट बैक होता है, बट ये 100% स्पेस तक या हमारे सेंसर तक नहीं पहुंच पाता है. नाउ let's see कि how the features of on the surface reflect the energy. सबसे ज्यादा अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है इंफ्रारेड रेंज में. क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और क्योंकि सबसे ज्यादा होती है इसलिए इंफ्रारेड एंड ग्रीन लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है किसी भी वेजिटेशन से जो ग्रीन कलर का है. इसलिए अगर हमें कभी भी वेजिटेशन पे स्टडी करनी होती है तो वी कंसीडर द इंफ्रारेड एंड ग्रीन. जो रेड एंड ब्लू लाइट होगी वो हमेशा ट्री क्या करेगा, पेड़ पौधे हैं, ग्रीन वेजिटेशन है, वो सब कुछ अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे. Now why we see the vegetation as green color? Because green color की जो wavelength होती है that is being reflected by this vegetation or this tree, and that is why this tree or the vegetation that is there on in parks or in on the roads, they are seen as the green color. So the red petals of this poppy flower reflects strongly at the wavelength of 700. 700 क्या है? हमारी red wavelength है. So जो ऑब्जेक्ट जिस कलर की हमको बेसिकली दिखाई दे रही है वो इसका मतलब है वो उस वेवलेंथ को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो भी वेवलेंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी वो ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखाई देगा. So these are the examples. So now there is one white color feature over here. अब ये white color का feature क्या है? अब yesterday जब क्लास में हम बता रहे थे तो एक चीज ये थी कि जो स्नो होती है, आइस है, स्नो है, सोडिक लैंड है, डेजर्ट एरियाज है, ये सब क्या करते हैं, ये 100% रिफ्लेक्शन कर देते हैं कोई भी एनर्जी को. अब अगर सारी की सारी एनर्जी 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो किसी भी कलर से नहीं दिखाई देगी, वो हमको दिखाई देगी व्हाइट कलर से. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी एनर्जी अपने में एब्सॉर्ब कर लेगा तो वो किस कलर से दिखाई देगा, वो हमको दिखाई देगा ब्लैक कलर से. अब लेट्स कम टू लैंडसेट सैटेलाइट. लैंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों लैंडसेट का डेटा हमेशा यूज करता है होता है, क्योंकि ये एक प्राइमरी मिशन है जो अर्थ के लैंड के सरफेस को मैप करने के लिए ही बेसिकली शुरू किया गया था. अब इस हर सैटेलाइट जो लैंडसेट की है उसका हमारे पास 16 डे का रिपीट डेटा मिल जाता है. लैंडसेट के जो बेसिकली 7 and 8 सैटेलाइट्स हैं, लैंडसेट 7 एंड लैंडसेट 8, उनका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो है 30 मीटर रेजोल्यूशन. The one very important thing about the Landsat data is that it is available on the internet
and it is free of cost. If we are doing any of the project, we can use the Landsat data, that is, it is available free of cost. Then Landsat satellites orbit the Earth at 705 kilometer above the surface. स्पेस में कितने एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट्स हैं लैंडसेट की? 705 किलोमीटर। फिर लैंडसेट ऑर्बिट कैसे करता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। सी द लैंड दी सैटेलाइट, दिस इज द पाथ ऑफ द सैटेलाइट। ये जो डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं एरोज, this shows the direction of the satellite. Satellite moves from north to south. So these are the thematic band wavelengths. जो there are 7 bands. First band, blue, green, red. Infrared band is there. SWIR band, that is short wave infrared band is there. Then short wave infrared band is there. Up the see the wavelengths, the name is same but the wavelength is different. And then the thermal infrared band is also added in Landsat 5 and in the 7. So this is the spatial resolution, means one small block or square of the satellite is of the area 30 into 30 meters. So it is the, so in this illustration, one band of Landsat data square represent a 30 into 30 meter piece of land on the अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है कि अगर 30 मीटर से कोई छोटी ऑब्जेक्ट है तो फिर वो लैंडसेट के डेटा को यूज करके हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। Now what is the radiometric resolution of this Landsat data? Radiometric resolution means on a gray scale कितने gray shade this Landsat data can identify. It can identify 256 shades of gray, like one is white and one is black, and in between it can identify 254 shades of gray. So 0 represent no reflected light and a numeric value of 255. जहां पर 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 255, और जहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करेगा, एंड द वैल्यू दैट इज यूज इज 0. 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी ब्लैक कलर के जो ब्लॉक्स हैं हमारे इस सैटेलाइट इमेज में, दैट इज the 100% absorption takes place over here. Okay, then white one is the square grids or pixel that are in which there is 100% reflection takes place. अगर 100% reflection हो गया तो it will be represented by white color, and the number which represent is 255. and अगर 100% absorption हो गया तो it will be represented by 0, and the color that will be representing will be black. So these are the different bands, 1 2 3 4 5 6 7 bands, and one panchromatic band is also there, जिसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन थोड़ा कम है इन बाकी बैंड से, बट डेटा हमें ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक कलर. अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट तो हम उसको कलर इमेज नहीं बना सकते. लाइक वी कैन नॉट मेक द FCC फ्रॉम अ सिंगल इमेज. अ सिंगल बैंड इमेज इज नोन एज पैनक्रोमेटिक इमेज, और किसी भी पैनक्रोमेटिक इमेज को लेके हम कलर और मल्टी कलर इमेज नहीं बना सकते हैं. फॉल्स कलर composite cannot be
प्रिपेयर यूजिंग अ पैंक्रोमेटिक इमेज। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक हमारे पास पैंक्रोमेटिक इमेज है, पैंक्रोमेटिक इमेज मतलब व्हेन द इमेज इज इन सिंगल बैंड, ठीक। बट लैंडसेट टेक इमेजेस इन 7 बैंड्स, जिसमें से हमारे 5 बैंड्स यूज होते हैं। दे आर नोन एज द मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड दे आर यूज टू मेक द एफसीसी। अब ये सारे बैंड्स हैं, इनके कलर्स यहाँ नीचे शो किए गए हैं। एंड व्हेन वी कंबाइंड ऑल दीज इमेजेस, सो वी विल बी गेटिंग द कलर इमेज। दिस इज द एफसीसी ऑफ दीज इमेजेस। ये वाले सारे इमेजेस को हमने ऐड किया है यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लाइक एडास यू कैन ऑल्सो यूज द आरजीआईएस। आरजीआईएस में न्यू वर्जन में बहुत सारे इमेज प्रोसेसिंग के काम हो सकते हैं। So one thing that should be remember is Landsat uses some bands of infrared light also. अब जो इंफ्रारेड लाइट के बैंड्स यूज कर रहे हैं हम लैंडसेट में, वो हमारी ह्यूमन आई के लिए सेंसिटिव नहीं है। हम इंफ्रारेड लाइट को नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी द विजिबल बैंड्स, विजिबल लाइट्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। इंफ्रारेड बैंड को हम लोग नहीं देख पाते हैं, बट वी आर टेकिंग द इमेजेस। और जब इमेजेस हमारी बन के आ जाती हैं तो वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन, जो हम अपनी नेकेड आई से, सिर्फ अपनी आंखों से ह्यूमन आई नहीं देख सकती है। वो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, किससे? लैंडसेट के डेटा से। So now there are many combinations. This is the true color image. This is the false color composite. Then this is also false color composite. This is also false color composite. अब आप ये कहेंगे कि ये जब तीनों ही false color composite हैं, तो इसमें फर्क क्या है? Like always remember, अगर हमारा vegetation red color से show किया जा रहा है, तब वो हमारा FCC, तो ये तीनों ही हैं। This and this, these three are FCC, false color composite. This is true color composite, TCC or natural color composite. NCC and TCC is same. True color composite and natural color composite वो एक ही तरह की इमेज के लिए यूज होता है। बट FCC, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरा कलर असाइन करे दे रहे हैं तो वो फॉल्स कलर हो जाएगा। बट दिस फॉल्स कलर कॉम्पोजिट, जिसमें हमने वेजिटेशन को रेड कलर असाइन किया है, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट। अगर कोई आपसे स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट बनाने के लिए बोलता है या पूछता है, तो इन विच द वो vegetation is shown is in red color, that is the false color composite, and that is known as the standard false color composite. So these are the bands: green, blue, green, red, infrared, near infrared, short wave infrared, thermal infrared, and panchromatic. These are the lines. These are the wavelength of the of these different bands, और these are the numbers. जब आपको सैटेलाइट डेटा आप डाउनलोड करेंगे तो ये हर एक इमेज अलग होगी और उसमें आपका बैंड नंबर लिखा होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये कि कौन से बैंड में, लाइक दिस 2 नंबर बैंड is of green color, 3 number band is of red color, and if you are not knowing this, तो जब आप फॉल्स कलर कॉम्पोजिट, स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट बनाएंगे तो हमको कौन कौन सा कलर लेना है? या तो ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड लेना है। तो हमको लेना है बैंड 2, 3 और 4। अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर दिया कि पहले 2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 1 ले लिया, तो आपका ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट है, जिसमें हम वेजिटेशन रेड से शो करते हैं, ये आप नहीं दिखा पाएंगे, ये बनेगा ही नहीं। Then you can see the visible, these 3 bands, blue, red and green. Blue, green and red, these are the visible bands. ठीक है, जो हम नेकेड आई से भी जो जितनी वेवलेंथ देख सकते हैं।
देन दीज आर द इंफ्रारेड वेवलेंथ्स जो हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, 1 2 3। अब जब हम इसको 1 2 3 को 3 2 1 कर देंगे, मींस पहले हम रेड बैंड लेंगे, फिर ग्रीन और देन ब्लू, तब हमारा जो डेटा बनेगा वो डेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला डेटा 2 3 और 4 बैंड्स को मिला के हमने जो डेटा बनाया है वो फॉल्स कलर कॉम्पोजिट इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमारा वेजिटेशन रेड कलर से शो होगा। कुछ कॉमन बैंड्स हैं जिनको हम दिखाते हैं। दिस इज द विजिबल वेवलेंथ, जिसमें आप देख रहे हैं ना, दिस इज द विजिबल वेवलेंथ। अभी इसमें आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब यहाँ देखिए, इंफ्रारेड में हमें देखने से पता चल रहा है कि ये कोई वॉल्केनो के पास का एरिया है, या फिर ये कहीं एक स्प्रिंग है जहां से धुआं निकल रहा है, और ये वाला जो पार्ट है जहां पे येलो और रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो हम लोग सैटेलाइट इमेज यूज करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग बैंड डिफरेंट करते जाएंगे वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स हमें अर्थ सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रू कलर है, ये नियर इंफ्रारेड है, और ये शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है। माउंट रेनर है, ये वहां की इमेजेस हैं। नाउ यू कैन सी द सैटेलाइट इमेज। ये किसी माउंटेन एरिया का एक सैटेलाइट इमेज है, और इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। सी कितनी क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा है कि द रिवर्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और ये यहाँ पर ये दिस इज द रिवर कन्फ्लुएंस जहां पे दो रिवर मिल रहे हैं, एंड देन द रिवर्स आर मीटिंग टू अ मेन रिवर। देन दीज आर द स्नो covered mountains. Some snow covered mountains are also there, mountain peaks are also there. Then green color, the vegetation is shown in green color. इसी को अभी हम FCC में देखेंगे तो वी कैन ऑल्सो, अभी ट्रू कलर में बहुत सारी चीजें एकदम से विजिबल नहीं होती है, बट व्हेन वी आर यूजिंग द ट्रू कलर, now see the vegetation, how clearly the you can identify the vegetation, the snow, and the areas which are not having any type of vegetation. See the river. So these are the pictures. Then again, this is another color composite, infrared color composite. अगर सारे पिक्चर्स को देखेंगे तो सबसे अच्छा आप खुद समझ पाएंगे कि ये वाली जो इमेज है, false color standard false color composite, this is the best picture to identify the different features. अब साइंटिस्ट करते क्या है, ये इस लैंडसेट के डेटा को यूज करके एनालाइज करते हैं। डेटा इज एनालाइज ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड यूजिंग द हार्ड कॉपी ऑल्सो। हेल्थ, किसी भी क्रॉप की हेल्थ को पता कर सकते हैं। अगर किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जैसे पेस्ट हो गए हैं, कोई कीड़ा लग गया है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉरेस्ट की हेल्थ पता चल जाएगी। अगर कहीं पे किसी जंगल में आग लगी है, हाउ मच एरिया इज इफेक्टेड विद फॉरेस्ट फायर, सो वी कैन measure the area that is affected by the forest fire. Then there are many things like flood zones में फ्लड से आने से पहले के बाद की पिक्चर्स को देख के we can identify the area that is being affected by the floods. Then we can monitor the wetlands to help the spread of pest-borne diseases. There are many things that we can do with the help of these satellites. अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट दे आर न्यू। अभी लाइक ड्यूरिंग द कोविड टाइम
देयर आर मेनी सैटेलाइट्स जो हमारी एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करती हैं, है ना। तो वो किस लिए यूज होती हैं, लाइक NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारी चीजों को ये सारी गैसेस को वो आइडेंटिफाई करके, लाइक कोविड से पहले की, लाइक लॉकडाउन से पहले की एंड लॉकडाउन से बाद की, उन्हीं ने इमेजेस प्रिपेयर करी जिसमें लोगों ने शो करा कि कैसे quality of air improves during the COVID time. So there are many satellites. There is one Indian mission also. Indian mission we will discuss tomorrow. So if anyone wants to ask anything, they can ask. If everything is clear to you all, then I must say, like, I will be sending you the PPT or the notes on these topics. आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर फिर कुछ लगता है तो आप मुझे बताइएगा, we'll discuss it tomorrow. किसी को कुछ नहीं पूछना है? No, ma'am. Okay, then okay, bye. And have a good day to you all. Bye. Thank you, ma'am.